أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیۃ والثناء کی نالین پاک کے توسل سے تفہیم قرآن کے سلسلہ میں عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 9 پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے تصدق سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا حصہ التجوید یہ ہے، اس میں جلالت اللہ یا اللہم اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، صرف 2 باتیں آپ نے ذہن میں بٹھانی ہیں۔ اس میں جلالت اللہ یا اللہم جب اس کا ماقبل یعنی اس سے پہلے والے کسی حرف کے اوپر فتح یا ضمہ آ جائے، زبر یا پیش ہو، تو اس کو مفخم پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس میں جلالت اللہ یا اللہم کا ماقبل یعنی اس سے پہلے کسرہ زیر ہو تو ان کو مرقق کر کے پڑھتے ہیں، بریک پڑھتے ہیں۔ زبر اور پیش کی صورت میں موٹا اور پر کر کے، اور اس موٹا اور پر کر کے پڑھنے کو مفخم کہتے ہیں، اور زیر یا کسرہ ہو اسے مرقق کہتے ہیں، اور مرقق کا مطلب ہوتا ہے بریک انداز میں پڑھنا۔ آج کا حصۃ القواعد باب کسے کہتے ہیں؟ ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنے کا نام باب ہے۔ جب ہم کسی لفظ کی ماضی اور اس لفظ کا فعل مضارع کا صیغہ یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو باب کہتے ہیں۔ جیسے ناصر ینصر ایک باب ہے، اسی طرح سامع یسمع بھی ایک باب ہے، اور اسی طرح ضرب یضرب بھی ایک باب ہے۔ باب کی جمع ابواب آتی ہے، جس کا معنی ہے بہت سارے ابواب، بہت سارے باب یہاں اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ فعل ماضی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب یہاں یہ دیے ہوئے ہیں، جس کا آپ نے ان کی نشانیوں کے ساتھ ان کے اعراب یاد کرنے ہیں۔ ماضی اور مضارع کے عین کلمہ میں کبھی موافقت ہوتی ہے، یعنی ماضی میں بھی عین کلمہ کے اوپر زبر ہوگی، مضارع میں بھی ہوگی، اور کبھی ماضی کے عین کلمہ میں پر ضمہ ہوگا، آگے مضارع میں بھی ہوگا، یعنی دونوں مضموم یا دونوں مفتوح یا دونوں مقصور یہ ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ ایک مفتوح تو دوسرا مضموم یا مقصور ہوتا ہے۔ اس سارے سینیریو میں ابواب کی تعداد 6 بنتی ہے۔ ماضی مفتوح العین اور مضارع مقصور العین، جیسے ضرب یضرب، یہاں را کلمہ عین کے مقابلہ میں آ رہا ہے اور یہاں اس کے اوپر فتح ہے، اور یضرب میں را کے نیچے کسرہ ہے، عین کلمہ مقصور آ رہا ہے۔ اسی طرح ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین۔ مفتوح العین کا مطلب عین کلمہ کے اوپر زبر، اور مضموم العین عین کلمہ کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں۔ ماضی مقصور العین اور مضارع مفتوح العین، جیسے سامع یسمع، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین، جیسے فتح یفتح،
माजी और मुजारे दोनों मजमूम लैन, जैसे कारूमा या कुरूमू। माजी और मुजारे दोनों मकसूर लैन, जैसे हासिबा यहसिबु, हासिबा यहसिबु। ये आपने याद करने हैं, और ये जिस वक्त याद हो जाएंगे फिर आपको अक्सर औकात फेल माजी और फेल मुजारे के बनाने में कोई किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हिस्सतुद दुआ में सफर की दुआ है। जब हम सवारी में बैठ जाते हैं तो ये दुआ तिलावत की जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, सख्खरा, सख्खरा युसख्खिरु का मतलब होता है जिसने मुसख्खर कर दिया, जिसने ताबे कर दिया, लना हमारे लिए, हाजा इसको, किसको, उस सवारी को, वमा कुन्ना और हम नहीं थे, लहू उसके लिए, मुक़रिनीन हम उसको अपने लिए खुद काबू में रखने की सलाहियत और इस्तेदाद नहीं रखते थे। व इन्ना और बेशक हम, इला तरफ, रब्बिना अपने परवरदिगार, लमुनक़लिबून, इनक़लबा यनक़लिबू का मतलब होता है लौट जाना, पलट जाना। हम जरूर अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। कि चलते हैं आज के 9वें रुकू की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हज्जु अशहुरुम मअलूमातुन फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाहु वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। अशहुरुम मालूमात, रा के ऊपर तनवीन है और उसके बाद मीम हुरूफ यरबलून में से, नून तनवीन के बाद हुरूफ यरबलून में से मीम है, इदगाम बिलगुन्ना होगा, और मीम मुशद्दद है तब भी इदगाम और गुन्ना वाजिब होगा। मालूमात, मालूमात, वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है, मीम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको अलिफ अल मद्दिया सगीरा कहते हैं। ता मुनव्वन है, तनवीन है ता के ऊपर, और उसके बाद फा हुरूफे इख्फा में से है, ता ता जीम दाल दाल रा सीन शीन स्वाद द्वा त्वा द्वा फा क़ाफ काफ। मगर यहाँ ये जीम रुकने की अलामत है, जब यहाँ रुकेंगे तो फिर मालूमा पढ़ेंगे, और जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर यहाँ इख्फा करेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद फा हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ भी इख्फा होगा, और नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। यहाँ अलिफ मद्दा है, यहाँ भी अलिफ मद्दा है, यहाँ वाव मद्दा है, क़ाफ हुरूफ मुस्तअलिया में से है, मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। फिल हज्ज, जीम कुतुब जद्दीन,
حروف قلقلہ میں سے ہے جیم، اور جب جیم ساکن ہوگا تو قلقلہ واجب ہوگا۔ الف مدہ ہے، یہاں باؤ مدہ ہے۔ نون ساکن کے بعد خا حروف اخفا میں سے ہے، خا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو خا حروف حلقی میں سے ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یہاں اظہار کیا جائے گا، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ خیر یا ساکن ما قبل مفتوح ہے، یائے لین ہوگا، اور یہ را کے نیچے دیکھیے تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، یہ ادغام بالغنہ آ جائے گا، یمونا یا میم واو نون، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو پھر یہاں ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ اس میں جلالت سے ما قبل اس سے پہلے والا حرف اس کے اوپر پیش ہے، مضموم ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہونے کی وجہ سے اس میں جلالت کے لام کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے دو میں واو مدہ ہے اور یہاں نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، یہاں یائے لین ہے، اور تقوا میں قاف ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں قلقلہ واجب ہوگا۔ تقوا یہ الف المقصورہ کی مثال ہے، جب یا ساکن یا خالی از حرکت کسی لفظ کے آخر پر آ جائے اور اس لفظ کے اس یا سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑی زبر آ جائے تو اس کو الف المقصورہ کہتے ہیں، اور الف المقصورہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ وَاتَّقُونَ میں قاف کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہوگی، اور با یہاں ساکن ہے، قلقلہ واجب ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ لیس علیکم جناح جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیسا یا ساکن ہے ما قبل مفتوح، یائے لین، اور علیکم میں بھی یا ساکن ما قبل مفتوح یائے لین، اور جناح ان میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کے پڑھیں گے، تب با ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، یہاں قلقلہ واجب ہوگا، اور واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ فا دولام لام کے اوپر تنوین، اور تنوین کے بعد نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، ادغام بالغنہ ہوگا، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کو براہ راست را کے ساتھ ملائیں گے، یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ غنہ کا مطلب آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنانا، اور بغیر غنہ کا مطلب کہ جہاں آواز کو ناک میں نہیں لے جاتے۔
आगे देखिए यहाँ अफादुतुम इदगाम मिसलैन है, दो हरूफ एक ही शक्ल और एक ही नाम के एक जगह इकट्ठे हुए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक था, पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया। नून साकिन के बाद आइन हरूफ इजहार में से या हरूफ हलकी में से था, तो यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ते हैं। यहाँ ता के ऊपर, ता के नीचे तनवीन है और उसके बाद फा हरूफ इख्फा में से है, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। और यहाँ इसमें जलालत से माकबल हर्फ के ऊपर जम्मा है, इसमें जलालत के लाम को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद दाल हरूफ इख्फा में से, यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे, इख्फा का कानून लागू होगा। हराम में यहाँ अलिफ मद्दा है, वज़कुरू में वाव मद्दा है, कमा में अलिफ मद्दा है, हदाकुम में दाल के ऊपर अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा है। यहाँ नून साकिन के बाद काफ हुरूफ इख्फा में से नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ा, यहाँ फिर नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से यहाँ भी इख्फा हुआ और यहाँ भी नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ा, और आगे दो मीम इकट्ठे इस्तेमाल हुए और यहाँ इदगाम मिसलैन हुआ, दो हुरूफ एक ही नाम के जमा हुए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक, तो पहले का दूसरे में इदगाम कर दिया। अब पहला मीम दूसरे मीम के अंदर छुपा हुआ है और ता को बराह रास्त मीम से मिला रहे। आगे नून साकिन के बाद क़ाफ हुरूफ इख्फा में से है, यहाँ इस नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। बा साकिन है, यहाँ कलकला वाजिब होगा और हा के नीचे या अल मद्दिया सगीरा है। दालीन में या साकिन माकबल मकसूर, यहाँ याए मद्दा है। आइए चलते हैं अगली आयत की तरफ। तुम अफीदू मिन हैसु अफादन नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तुम मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। अफीदू में या साकिन है, माकबल मकसूर है, याए मद्दा है, और दू में वाव साकिन माकबल मजमूम है, वाव मद्दा। मिन हैसो नून साकिन के बाद हा हरूफे इजहार या हल्की में से है, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। हाई में या साकिन माकबल मफ्तू, यहाँ याए लीन है। अफादन नास में नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा और इसमें जलालत का माकबल मजमूम है, इसको मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। नून मुशद्दद पर गुन्ना वाजिब है, इसमें जलालत का माकबल मफ्तू, इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। और यहाँ वाव मद्दा है और यहाँ रा के ऊपर तनवीन है और दूसरी रा हरूफे नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से रा आ गई, इदगाम बगैर गुन्ने के होगा। और यहाँ या साकिन माकबल मकसूर है, याए मद्दा है। चलते हैं आज के लफ्जी और बा मुहावरा तर्जमा की तरफ। ये 3 आयात का तर्जमा देख लेते हैं। यहां से आप लफ्जी तर्जमा याद करेंगे। जी, यहाँ आयत नंबर 197 में हज के अय्याम के बारे में डिस्कशन की जा रही है कि हज किन किन दिनों में किया जा सकता है। यूं कह लें कि हज के औकात का तज़किरा किया जा रहा है।
अलहज हज अशहुर, इसके महीने मालूमात मुतय्यन है, मुकर्रर कर दिए गए हैं। हज के चंद महीने मुअय्यन है, मुकर्रर है। कौन कौन से? शव्वाल, जुल्कादा और अशरे जुल्हज्जा। इन अय्याम में हज के ये अय्याम और महीने, हज के अय्याम और महीने करार दिए जाते हैं। इन औकात के अलावा अगर कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत का इरादा करता है तो वो हज नहीं कहलाया जाएगा। हज का मखसूस वक्त ये महीने हैं। तो जब किसी इबादत को उसके औकात में अदा नहीं किया जाता तो तब वो इबादत अदा में शामिल नहीं होती। हाँ, जो फराइज हैं वो अदायगी का वक्त गुजर जाने के बाद फिर उनकी कज़ा वाजिब हो जाती है। हज में तो साहिब इस्तेदाद शख्स पर हज फर्ज है, वो हज करेगा। इस पर मैंने आपसे इससे पहले वाले सबक में हदीस पाक आपको सुनाई थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स साहिब इस्तेदाद है और फिर सलाहियत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद वो हज नहीं करता तो वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। फमन फरादा, बस जो शख्स फरादा फर्ज करे, फी हिन्ना, इनमें, अल हज, हज को। हज इन महीनों में फर्ज कैसे होगा कि एक साहिब इस्तेदाद शख्स ने इन महीनों में हज की नियत कर ली, उस पर हज फर्ज हो गया। अब जब वो हज उस पर फर्ज है, नियत कर ली, तो उसके लिए हुक्म ये है कि फला रफता वला फुसूक, कि वो उन हज के दिनों में ना तो औरतों से इख्तिलात करे और ना कोई गुनाह करे। वला जिदाला फिल हज, और किसी से झगड़ा ना करे हज के दौरान में। वमा, और जो तफअलू, तुम करो, मिन खैर, भलाई से, यालमुहुल्लाह, बस उसको अल्लाह की जात अक़दस जानने वाली है। बस तुम में से जो कोई भलाई करता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल उसके उस भले काम को जानने वाले हैं। वतज़व्वदू, और तुम सामाने सफर साथ रखो। फ़इन्ना, बस बेशक, खैर, बेहतर, अज़्ज़ाद तक़वा, सबसे बेहतर ज़ादे राह तक़वा है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, वत्तक़ून, और तुम डरो, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, ए अक्ल वालो, तुम मेरा तक़वा इख्तियार करो, मुझ ही से डरो। दूसरी आयत वही आकाम हज बताए जा रहे हैं। लैसा अलैकुम, लैसा हर्फ नफी है, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहन, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन तबतगू, कि तुम तलाश करो, फदलन, फज, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से, फ़इदा, बस जिस वक्त, अफदतुम, अफादा युफीदो का मतलब होता है पलट आना, बस तुम जब वापस आओ, पलट आओ, मिन आराफात, मैदाने आराफात से, फज़कुरुल्लाह, बस तुम अल्लाह का जिक्र करो, तलबिया के कलिमात अदा करो, इंदल मशअरिल हराम, मशअरे हराम यानी मुज़दलिफा के पास अल्लाह का जिक्र किया करो। वज़कुरूहु, जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत की है, जिक्र करो तुम, कमा, उस तरह जैसे, हदाकुम, तुमको हिदायत दी,
मा और इन अगर कुंतुम तुम हो मिन कबल ही इससे पहले लमिन दालिन जरूर भटके हुए थे। ये अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता कर दी है और तुम हिदायत इलाही के हुसूल से पहले पहले तुम भटके हुए थे, सिराते मुस्तकीम पर गामजन नहीं थे। अल्लाह ने हिदायत दी और तुम सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो गए। सुम्मा फिर अफीदू तुम पलटो मिन हाइसो उस जगह अफादन्नास जहां से दूसरे लोग वापस पलट रहे हैं। मस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से खूब बख्शिश तलब करो। इन अल्लाह बेशक अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला। फिर तुम वहीं से जाकर वापस आया करो जहां से और लोग वापस आते हैं और अल्लाह से खूब बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। ये 3 आयात आज हमने तिलावत की और उन 3 आयात का हमने तर्जुमा सीखा और